welcome to your pre-educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Elements, Compounds and Mixture. In that chapter today we have to study about symbols and types of elements. तो आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। एलिमेंट्स के सिंबल कैसे तैयार हुए हैं, उन्हें कैसे लिखना है और उन्हें कैसे याद करना है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसी तरह टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो है इनके कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स किस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। Therefore watch this video completely. If you are not subscribed my channel then subscribe it and don't forget to like and share the video. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंबल एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो पहले हम सिंबल्स किस लिए यूज करते हैं? Why? We know that we use the different types of short forms. Why do the short forms here कुछ यहाँ पे कुछ short form दिए हैं। Why do the short forms like DR, HM, ADV, then CM, then AC, DC are used? और this symbol stands for, तो पहले हमें पता है, इससे भी सिंबल्स आपको भी पता है। DR is used for doctor, HM is used for headmaster, ADV used for advocate, then AC is used for air condition, then the DC, CM is used for chief minister and DC used for district collector. In this way, in our day-to-day life, we use the short forms in many places. बहुत जगह पे हम short form use करते हैं। हमारे नाम का भी हम short form use करते हैं। जैसे अब मेरा नाम है पंकज मधुकर बोरेकर, तो मैं इसका short form use करता हूँ PM बोरेकर। जब मैं बहुत बार नाम लिखते हुए मैं लिखता हूँ PM बोरेकर instead of writing complete name Pankaj Madhukar Borekar. In this way, we have to use the short forms in many places. The names of many institutes are given in a short forms, like that of the ICCI, that is Indian Cricket Control Institute, जो इस तरह से नाम है। The BCCI, तो BCCI, the board of control for cricket in India। तो इस तरह से short form institutes का भी होता है। तो like that wise the short forms of elements are also used. There are similar method is used to indicate the names of element. The names of elements are written in short form and these short forms are called as symbols. आगे समझ में? तो the short forms of names of element is called as symbol. तो सिंबल किसे कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स के नेम का शॉर्ट फॉर्म। तो इस शॉर्ट फॉर्म को क्यों यूज करना है यहाँ पे? बिकॉज इस सिंबल को अगर आपको पता है तो व्हाइल राइटिंग द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन नाम तो सुना होगा, तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स भाग लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका नाम अगर लिखेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो टू मेक इट कंसाइज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स वी यूज द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड compounds, and then the reaction becomes concise and it is very easy to understand and write that chemical reaction. तो chemical symbols जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो who gives this system of naming or symbols of elements? The scientist Berzelius की सिस्टम जो है अभी हम प्रेजेंट में यूज करें। तो साइंटिस्ट Berzelius was the first to use the these names or this present method of using the symbols of element। तो बर्जेलियस साइंटिस्ट ने जो मेथड हमें दिए, जो सिंबल्स की मेथड हमें दिए, वही मेथड हम आज यूज करते हैं। The symbol of an element is always written in an English script and it is the short form of their names। तो इंग्लिश फॉर एग्जांपल आप देखिए, हाइड्रोजन is the एलिमेंट एंड द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। तो हम इंग्लिश लेटर में सिंबल्स लिखते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स का पहला लेटर है H और उसके नाम के पहले लेटर से इसका सिंबल जो है वो लिखा जाता है हाइड्रोजन। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। इन दिस वे, इन दिस टेबल you can see there are the various symbols
of the elements are given along with their name. अब देखिए H हाइड्रोजन, फॉर H हाइड्रोजन का सिंबल H है, हेलियम का He है, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, देन नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो इस तरह से सिंबल्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल जो है यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे एक बात आपको कॉमन पता चलती है कि ऑल द सिंबल्स आर रिटन इन अ इंग्लिश लेटर, बट देयर आर सम एलिमेंट्स इन विच देयर फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम इज सेम। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम का पहला लेटर एक कॉमन होता है। तो इन दैट टाइम, इन दैट सिचुएशंस, द पेयर ऑफ लेटर्स आर यूज्ड टू राइट देयर नेम्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से आपको पता चलेगा। आप देखिए कार्बन, क्रोमियम, क्लोरीन, देन कोबाल्ट, कैल्शियम। तब देखिए ये सभी एलिमेंट्स जो है इनका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट होता है। तो सी जो लेटर दिया है सिंबल कार्बन के लिए, अब क्रोमियम के लिए यूज किया जाता है Cr। आगे समझ में, यानी कि पहला लेटर सी और तीसरा लेटर आर। क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है Cl, फर्स्ट लेटर सी, थर्ड लेटर L। कोबाल्ट के लिए यूज किया जाता है Co। कैल्शियम के लिए यूज किया जाता है Ca। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इफ द सिंबल्स आर मेड अप ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर से सिंबल अगर बना हुआ है तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अगर दो लेटर से सिंबल बना है तो उसका पहला लेटर ये कैपिटल होता है और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल होता है। अब देखिए क्लोरीन में C कैपिटल है, L स्मॉल है, कोबाल्ट में C कैपिटल है, O स्मॉल है, कैल्शियम में C कैपिटल है और A स्मॉल है। तो ये अगर आपको याद रखना ही है कि अगर दो लेटर से सिंबल बना है तो उसके लिए हम पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल यूज करते हैं। तो इन दिस वे द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर derived from their names. You can find out the symbols of other elements in the from the internet. We know 118 elements till now. तो 118 एलिमेंट्स हमें पता है, 118 एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट के सिंबल आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो अब मैं सभी एलिमेंट्स के सिंबल आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो जो है इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ती है। तो अब हमने देखा है कि द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, symbols of elements are taken from English letter, but there are some elements their names are different and their symbols are different. For example, the filament bulb, filament bulb आपने देखा होगा, ये पुराने जमाने में, अब हम इस बल्ब का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो इस तरह से बल्ब होता है। These filaments, the filament is called as tungsten। तो ये टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन जो है, तो टंगस्टन इसका सिंबल होता है W। इसका सिंबल क्या है? W। अब देखिए नाम है टंगस्टन और टंगस्टन में W कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देता है, बट बिकॉज दिस नेम W, सिंबल W इज टेकन फ्रॉम इट्स जर्मन नेम एंड इट्स जर्मन नेम इज वोल्फ्राम। इसका जर्मन नेम क्या है? वोल्फ्राम। आगे समझिए, वोल्फ्राम इज द जर्मन नेम। तो टंगस्टन ये जो एलिमेंट है इसका सिंबल W क्यों है? क्योंकि ये जो सिंबल है जर्मन नेम से लिया गया है और टंगस्टन का जर्मन नेम होता है वोल्फ्राम। देयरफॉर W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। तो उसी तरह से अब देखिए फॉर एग्जांपल द सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag। गोल्ड इसका सिंबल है Au। सोडियम इसका सिंबल है Na। तो सिल्वर जो है इसका सिंबल Ag, इट्स टेकन फ्रॉम लैटिन नेम, ये लैटिन नेम से, इसका लैटिन नेम है आर्जेंटम। गोल्ड इसका सिंबल लैटिन नेम है ऑरम। देन सोडियम इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। तो
ये जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम से कुछ सिंबल्स बने हैं, कुछ सिंबल जो है जर्मन नेम से बने हैं, बट मोस्ट ऑफ द सिंबल्स आर मेड फ्रॉम देयर इंग्लिश लेटर। फॉर एग्जांपल टीन का सिंबल होता है SN। The elements are exist in all the three states, solid, liquid and gaseous। एलिमेंट जो है सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी होते हैं। There are some elements it is very difficult to use in its pure form। कुछ एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म में हम इन्हें यूज नहीं कर सकते या यूज करना बहुत कठिन होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हम आयरन आपने देखा होगा, द प्योर आयरन ऑफन गेट रस्ट। प्योर आयरन जो है, प्योर आयरन से अगर हम कोई चीजें बनाते हैं, लोहे की चीज प्योर आयरन से बनी, तो दीज आर ऑफन गेट रस्ट, उस पे जंग चढ़ जाता है। तो जंग चढ़ने की वजह से दे आर ऑफन द कोरोजन, उनका कोरोजन होता है। कोरोजन की वजह से वो मेटल जो है स्लोली डिग्रेडेड होके वो फिर नष्ट हो जाएगा। तो सिमिलर, और दूसरा एलिमेंट जो है उसका एग्जांपल देता हूं मैं, गोल्ड। Pure gold is very soft and it is very difficult to make the ornaments of pure gold because it often breaks due to its softness। आगे समझिए, तो इसकी वजह से these elements can be modified, इनको मॉडिफाई किया जाता है, and these elements can be modified and its properties can be improved by mixing other elements in it, and that is called an alloy। इस एलिमेंट्स जो है इनकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर दूसरा एलिमेंट मिक्स किया जाता है, गोल्ड ये सॉफ्ट होता है, आयरन जो है इनके रस्टिंग होती है, कॉपर जो है इसका भी रस्टिंग, ये भी इसका भी कोरोजन होता है, इसके ऊपर ग्रीन पैचेस गिरते हैं, तो इसके लिए इनका एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय क्या है? एलॉय इज द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर metals and non-metals in a fixed proportion, then it is called an alloy। तो मेटल और नॉन मेटल क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2 और ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे में मिक्स करने के बाद जो है सब्सटेंस तैयार होता है, तो वो पदार्थ जो है उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। अब देखिए स्टील, अब स्टील जो है ये स्पेशली इट इज मेड अप ऑफ आयरन, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा आयरन होता है, ठीक है, लेकिन आयरन रस्ट होता है, इसके लिए इसमें कार्बन मिक्स किया जाता है, क्रोमियम मिक्स किया जाता है। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और भी कुछ एलिमेंट्स इसमें मिक्स किए जाते हैं, उससे स्टील बनाया जाता है। तो स्टील जो है वो इसका रस्टिंग फिर नहीं होता है, एंड इट इज वेरी ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल भी होता है। देन अब देखिए गोल्ड, pure gold is called as 24 carat, but 22 carat gold it is not a soft like that of the 24 carat gold। अब 22 carat gold जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है कि जितना 24 कैरेट, और इससे हम जब ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो ऑर्नामेंट्स टूटते नहीं है। तो उसके बाद देखिए ब्रास, गोल्ड जो है 22 कैरेट, इस गोल्ड के अंदर हम क्या यूज करते हैं? कॉपर यूज किया जाता है, और इसके अंदर सिल्वर Ag यानी कि सिल्वर भी यूज किया जाता है। तो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, इससे भी 24 कैरेट गोल्ड बनाया जाता है। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर के साथ अगर जिंक को मिक्स करेंगे, कॉपर का प्रोपोर्शन इसमें ज्यादा रहेगा, जिंक का प्रोपोर्शन कम रहता है, तो उससे जो एलॉय बनता है उसे हम ब्रास कहते हैं, और इस जो है इसका कोरोजन नहीं होता है। देन ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर और टीन जो है वो यूज किया जाता है। तो कॉपर और टीन को अगर हम यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसका कोरोजन नहीं होता है। तो इस तरह से कॉपर और टीन के साथ ब्रॉन्ज बनता है। गोल्ड में हम कॉपर और सिल्वर मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है प्रॉपर्टीज वहां पे चेंज होती है। प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका कोरोजन नहीं होता है। देयरफॉर द एलॉय आर वेरी यूजफुल टू अस। देन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, अब हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। डू ऑल मेटल्स आर एलिमेंट्स। तो सभी एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स होते हैं क्या? नो, all elements are not metals। generally metals or elements are classified into 3 groups। तो elements जो है, types of elements, तो elements को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
ब्रॉडली दे आर डिवाइड्स इनटू टू ग्रुप, ब्रॉडली इनके टू ग्रुप्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और तीसरा ग्रुप होता है मेटलॉइड। तो मेटल्स एलिमेंट्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, एंड दिस मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है पहले पढ़ी है, तो मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सोनोरिटी, यूजुअली मेटल्स आर हार्ड, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर, जिस एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टीज है वो मेटल, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स जो है इसके एग्जांपल हम देखेंगे, कॉपर इज द मेटल, आयरन इज द मेटल, सिल्वर, गोल्ड, ऑल दीज आर द मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी। अब मेटल जो नॉन मेटल इनकी संख्या कम होती है, इनमें प्रॉपर्टीज नहीं होती है, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सोनोरिटी, एंड नॉन मेटल्स दे आर जनरली ब्रिटल, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो नॉन मेटल का एग्जांपल हम देखेंगे, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, these are the non metals. And metallites किसे कहते हैं? There are some elements which have the properties of metals as well as non metal. कुछ उसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, they behave as metal as well as non metal, they are called as metallites. तो metallites जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, these are the नॉन मेटल्स, ये सभी क्या है? मेटल्स है। आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम, ये सभी जो है मेटलॉइड्स होते हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, देन देयर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, देन एलॉय के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये सभी सिंबल जो है इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।